نے کوئی اس حوالے سے اہم انسٹرکشن دیے؟ دیکھیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس ہے, ہمیں امید ہے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ڈائریکشن آ جائے گی. اگر ڈائریکشن آ جاتی ہے تو سہیل افریدی صاحب انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے. دیکھو یہ نہ صرف یہ کہ ثوابدید ہے اس کی وزیر اعلیٰ کی, بلکہ خان صاحب نے پہلی مرتبہ بھی جب علی امین گنڈاپور صاحب چیف منسٹر ہو گئے تھے انہوں نے بھی ملاقات کی تھی, ساری چیزیں ڈسکس کر دی تھی, اور اس کے بعد کیبنٹ فائنل ہو گیا. تو فرسٹ ٹاپ پرائرٹی تو ہماری یہی ہے کہ ان کی ملاقات ہو. اگر کسی صورت بھی ملاقات نہیں ہونے دیتے, نہ ہفتے میں ملاقات ہونے, نہ 10 دن میں دیتے, اور بالکل ایک قسم کا بے نہیں لگا دیتے, تو پھر obviously صبح کو تو بغیر کیبنٹ کے نہیں چھوڑیں گے, پھر مختصر سا کیبنٹ بنائیں گے اور جب ملاقات ہوگی تو کریں گے. لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ملاقات ہو جائے گی 1-2 دن میں. اچھا, خان صاحب کو اگر آئسولیٹ کر لیا جاتا ہے تو جو کیبنٹ کے حوالے سے کوئی خان صاحب نے کوئی انسٹرکشن دے بھی دی ہیں؟ کچھ انسٹرکشن خان صاحب نے بائی اینڈ لارج جنرل سی دی ہے, لیکن دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے کہ وزیر اعلیٰ خان صاحب سے ملے, ان سے ڈسکس کر لے, خان صاحب ان کو پالیسی دے, خان صاحب ان کو گائیڈ لائنز دے, ان کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ ڈائریکٹلی 1-on-1 ان ٹچ ہو, اور پھر اس کے بعد ہو. تو یہ بہت ضروری ہے ملاقات, اور دیکھو ملاقات ہونے چاہیے. یہ ملاقاتیں ہماری اکتوبر 2023 سے چل رہی تھی, اس میں کئی مرتبہ عدالت نے آرڈر کیا, پھر مارچ 2025 میں 3 ممبر بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا, بائی کنسنٹ یہ آرڈر پاس ہوا کہ وکلاء کو نہیں روکیں گے, فیملی کو نہیں روکیں گے, لیڈرشپ کو نہیں روکیں گے, ملاقاتیں کر لیا کریں گے. دیکھو اور ملاقات ہوتی بھی کتنی ہے, آدھے گھنٹے کی ملاقات میکسیمم 40 منٹ تک جاتی ہیں. 6 وکیل ہوتے ہیں, وہ 4-4 منٹ آپ بات کرو تو ملاقات کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اگر اتنی بھی ملاقات آپ نہیں کراتے تو یہ بڑی اسی سے یہ تلخی بڑھتی ہے, اس سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہے. خان صاحب کے ساتھ جتنی زیادہ ملاقاتیں ہوگی لیڈرشپ کی, فیملی کی, وکلاء کی, تو دیکھو حالات بھی بہتر ہوں گے, یہ انزائٹی بھی نہیں ہوگی, یہ تلخیاں بھی نہیں ہوگی. تو اب ملاقات ایٹ لیسٹ وزیر اعلیٰ کی تو ہونی چاہیے تاکہ کیبنٹ. وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم سے میں نے جب کال پہ بات ہوئی مبارکباد کے دوران تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے کہا کہ میں نے میری ملاقات کروائی ہے, اور انہوں نے جواب دیا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. آپ کی متعدد بار وزیر اعظم سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, آپ نے کبھی کہا ہے کہ میری ملاقات بھی کروا دیں؟ دیکھیں میری ملاقات کا کوئی ایسا ایشو نہ ہے کہ مجھے وزیر اعظم سے ضرورت پڑ جائے کہ ہماری ملاقات کراؤ, ایسا کوئی موقع ہمارے پاس نہیں آیا. اچھا چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا 26ویں ترمیم کے حوالے سے سماعت چل رہی ہے سپریم کورٹ میں, اس وقت آپ بھی موجود ہیں. بانی تحریک انصاف, پاکستان تحریک انصاف کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ فل کورٹ چاہ رہی ہے, وہ 16 جو ججز ہیں وہ چاہ رہے ہیں, یا 24؟ دیکھو پٹیشن ہم نے بھی فائل کی اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ دیکھو فل کورٹ, اور ہمارا مطلب یہ ہے کہ جو 26ویں ترمیم سے پہلے جو ججز موجود تھے وہ اس میں سارے اویلیبل جج صاحبان بیٹھے اور اس کا تصفیہ کریں. یہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے. میں اگر عدلیہ کے بارے میں آپ بتاؤں تو 26ویں ترمیم تو ایسی متنازعہ ترمیم ہے کہ یہ تو بائی آل مینز ہر صورت ختم ہونی چاہیے, بٹ شارٹ آف اٹ عدلیہ میں ادروائز ریفارم بڑی ضروری ہے. پری 26 امینڈمنٹ کی عدلیہ سے بھی کوئی لوگ خوش نہیں تھے, اس لیے اس میں بھی ریفارمز کی ضرورت ہے. لیکن جہاں تک 26ویں ترمیم کا تعلق ہے یہ بڑا متنازع ہے, یہ ختم ہونا چاہیے. چیئرمین صاحب ترجمان ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب بانی تحریک انصاف کے, کل ان کا نام جو ہے وہ لسٹ میں نہیں ڈالا گیا جو اعلیٰ میں ملاقات کا تھا. وہ بڑے تحفظات رکھتے ہیں, کیا جو پاکستان تحریک انصاف کی اپنی لیگل ٹیم ہے اس کے درمیان میں کوئی نہیں؟ دیکھو فوکل پرسن چینج ہوتے رہتے ہیں. علی ظفر صاحب وہ لسٹ بھیجتے ہیں, میں نے تو ان کا لسٹ نہیں دیکھا کس میں نام تھے, لیکن اکثر وکلاء اپنے اویلیبلٹی بتاتے ہیں کہ میں نے جانا ہے, اور اویلیبلٹی کی لسٹ آ جاتی ہے علی ظفر صاحب کے پاس. اس کا تو میرے خیال ہے بائی اینڈ لارج آلموسٹ ہر لسٹ میں اس کا نام ہے. اگر کل نہیں آیا تو نہیں آیا ہوگا, لیکن اس کا نیکسٹ ٹیوزڈے پہ آ جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. سر 26ویں ترمیم میں کچھ وکلاء کا یہ موقف ہے, جیسے کل اکرم شیخ صاحب نے کہا کہ 24 ججز بیٹھے ہیں, اور کچھ لوگ 24 کے حمایت میں ہیں, کچھ جو ہے وہ 16 کے حمایت میں ہیں. تو کیا یہ لوگ جو ہے وہ جو پروسیڈنگ چل رہی ہے اس کو ایک سائڈ پہ کرنے کے لیے لائے گئے ہیں, یا کیا ہے؟ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 24 ججز بیٹھے, ان کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے ججز بیٹھے, تو اس میں وہ بھی جج انکلوڈ ہوں گے جو ابھی سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو کے آئے ہیں, اور سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد جو بڑھائی گئی ہے وہ بھی اس میں انکلوڈ ہے. لیکن بائی اینڈ لارج لوگوں کا یہی موقف ہے کہ اگر آپ نے 26ویں ترمیم کو دیکھنا ہے تو اس میں وہ جج بٹھائے جو 26ویں ترمیم سے پہلے موجود تھے, وہ سارے ججز اویلیبل ججز جو سارے موجود تھے اس وقت جو 26ویں ترمیم آئی ہے. لیکن ون وے دی ادر ڈے سپریم کورٹ کا اب چاہیے کہ اس کا فیصلہ کر ہی دے. سر وزیر اعلیٰ ججز بیٹھے ہیں اس میں, میرا خیال ہے وکلاء ہمارے موجود ہیں, وہ جیسے ارگو کرتے ہیں سب کو دیکھے تو ہمیں قبول. سر وزیر اعلیٰ ایک ایگزیکٹو کا عہدہ ہے, پی ٹی آئی ناکام ہے پی کے ایم اے کے وزیر اعلیٰ کو استعمال کر رہے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے. پی ٹی آئی بحیثیت جماعت کیوں نہیں تحریک چلاتی؟
वज़ीर आला को एज ए इंतज़ामी सरबराह काम करने क्यों नहीं दिया जाता? नहीं, हमने तो कभी वज़ीर आला को नहीं इस्तेमाल किया किसी पॉलिटिकल काम के लिए। देखो, पॉलिटिकल डिसीजंस आज तक जितने हुए, जो तहारीक चली हैं, जो जलसे हुए हैं, रैलीज़ हुई है, उसमें कि एक भी वज़ीर आला ने अनाउंस करके नहीं दिया। सारे खान साहब अनाउंस करते थे और वक्त के साथ साथ जो है वो पार्टी उसका तयन करती। लाहौर में जलसा हुआ, लाहौर वालों ने उसका प्रोग्राम किया था। इस तरह मानसरा में हुआ, वहाँ की तंजीम ने उसका एहतमाम किया था। ये जो बाकी जलसे हैं, इसका अली अमीन साहब एहतमाम किया करते थे, सारे ऑर्गेनाइजेशन उसको हम देते थे। लेकिन जो ऑर्डर होता था वो खान साहब ही की तरफ से आया है। अब आइंदा भी कोई ऐसा हुआ तो उसको हमने पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अलबत्ता चीफ मिनिस्टर की जो पोजीशन है वो हमारे आईन और कानून के मुताबिक वो सियासी भी है और वो एग्जेक्टिव भी है। वो एक आपको याद होगा जब सदर थे जरदारी साहब, तो लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला भी दिया था और उन्होंने भी ये होल्ड कर दिया था कि हाँ, ये जो ऑफिस है ये बोथ हैं इन नेचर, वो सियासी भी है और वो भी है। चेयरमैन साहब, कौमी सलामती के इजलास में KPK के जो नए वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी की शिरकत ना करना, क्या समझते हैं? उनको शिरकत नहीं करनी चाहिए थी? KPK की तरफ से नुमाइंदगी हुई थी, चीफ सेक्रेटरी साहब भी आए थे और उनके फाइनेंस मिनिस्टर भी आए, फाइनेंस एडवाइज़र भी आए थे। इस मरतबा जो हम कह रहे हैं वो ये है कि जी पहली सुहेल अफरीदी की मुलाकात हो, सब उसकी मुलाकात हो जाए, 1-on-1 खान से मुलाकात हो जाए, वो सारी गाइडलाइंस ले लेंगे और फ्यूचर के लिए इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाए। अच्छा सर, दो सवाल हैं। पहला ये कि अली अमीन गंडापुर ओहदे से हट गए हैं और हमारे सोर्स ये कह रहे हैं कि अभी भी उन्होंने सिक्योरिटी वज़ीर आला की और वो सारे गाड़ियाँ और प्रोटोकॉल पूरा रखा हुआ है। क्या एक साबिक वज़ीर आला को इस तरह करना चाहिए? और ख़ासकर PTI जो दावा करती है कि हम एक अलग निज़ाम और सोच रखते हैं। देखिए, मुझे मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने प्रोटोकॉल और अपनी गाड़ियाँ रखी हैं। उनके पास जो गाड़ियाँ थी, अली अमीन साहब की अपनी गाड़ियाँ थी, बल्कि एज ए चीफ मिनिस्टर जब भी वो किसी जलसे वगैरह में भी आते थे तो हमेशा अपनी गाड़ियों पे आते थे। सरकारी गाड़ियों का उन्होंने उसमें भी कभी इस्तेमाल नहीं किया, तो मुझे प्रिसाइसली उसका नहीं पता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उसके पास गाड़ियाँ अपनी हैं। प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी उसके पास है एक साबिक वज़ीर आला की हैसियत से, तो मेरा ख्याल है वो साबिक वज़ीर आला की हैसियत से खटक साहब के पास भी है, महमूद खान साहब के पास भी है, वो अगर उन्होंने तरक्की है। अदरवाइज़ मैं तो बजाते खुद इस बात का कायल हूँ कि मैंने तो असम्बली में खड़े होकर के ये कहा था कि सर रिटायर लोग हैं, वो 20-20 10-10 बंदे लेके गए, चेयरमैन सेनेट लेके गया, स्पीकर लेके गया, एक कोई अंधेर नगरी तो नहीं होनी चाहिए। तो जिस के पास है कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। वफाक ने जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी हैं KPK को, कल उन्होंने वापस कर दी हैं कि ये एक्सपायर हैं गाड़ियाँ, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है तलाल चौधरी साहब ने। एक्सपायर गाड़ियों का नहीं बोला, बल्कि ये कहा है कि जी ये यूज्ड गाड़ियाँ हैं और ये हमारे स्टैंडर्ड के लिए। मेरा ख्याल है KPK की जो गाड़ियाँ मिली है, KPK हुकूमत का ये कहना है कि जो हमारा टेरेन है और जहाँ हमने इस्तेमाल करना है उसके लिए ये मौजूद नहीं है। तो अगर हम इस गाड़ियों को नहीं इस्तेमाल कर सकते, इट्स बेटर टू रिटर्न इट, वफाकी हुकूमत किसी और काम के लिए इस्तेमाल करे। अदरवाइज़ देखिए, जो नेशनल एक्शन प्लान के पॉइंट्स थे 14, उस पर सब यही कह रहे हैं कि उस पर अमल दरामद हो। उसमें मदारिस के जो है रजिस्ट्रेशन भी शामिल था, फंडिंग भी बंद करना शामिल था। उसमें एक बात ये भी थी कि आप इस्तेदाद बढ़ाएं, CTD की भी और पुलिस की भी, और वो इस्तेदाद बढ़ाने के लिए KPK हुकूमत बहुत कोशिश करती रही है। अली अमीन खान गंडापुर साहब ने एक 7000 एडिशनल फोर्स सिक्योरिटी का भी लगवाया था ताकि टेररिज्म को कम्बैक्ट कर सके। आल्दो बाय एंड लार्ज जो है आइन का मैंडेट यही है कि अगर सूबे में इंटरनल डिस्टर्बेंस हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो तो वो वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। बॉर्डर के करीब जाके टेररिज्म को रोकना ये उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन उन्होंने इस्तेदाद बढ़ाने के लिए कोशिश की थी। पुलिस ऑलमोस्ट 40 अरब रुपए के खर्च करके कुछ गाड़ियाँ भी मंगवाई थी और वो पाइपलाइन में भी है, वो आ रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस्तेदाद खुद भी बढ़ाएं। सर, आपके पार्टी की पार्लिमानी पार्टी KP और मुतअद्दिद MPs बैरिस्टर सैफ और मुजम्मल असलम के हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ पे तो ज़्यादा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनके इमाम पर बहुत कुछ करते रहे और मुजम्मल असलम को बाहर का बंदा सोचकर वो इख्तलाफ कर रहे हैं। तो क्या वजह है कि अभी तक काबीना नहीं हो सकी? इन अफराद को लाने के लिए सुनने में आया है आपको बानी PTI तक बार बार भेजा जा रहा है और बैरिस्टर साहब भी इसीलिए जाते हैं ताकि इस्टेब्लिशमेंट आपके बैरिस्टर अली ज़फ़र या बैरिस्टर साहब के हम ख्याल दोस्तों के ज़रिए उनको काबीना में फिर ला सकें। देखिए शिराजी साहब, मैं मचमूर अमेरिकन हूँ, मैं कोई किंग नहीं हूँ कि जो लोग मेरे ऊपर क्रिटिसाइज़ करें तो मैं बुरा मनाऊँ, या ये कि मैं गलती नहीं करता मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, या ये कि मैं कोई DPO और DC हूँ कि तंग आके मैं कहूँ मुझे अच्छी जगह ट्रांसफ़र करें। लाइफ में ये सारी चीज़ें होती हैं और मैं बड़ी खंद पेशानी के साथ लोगों की तनकीद लेता हूँ। लेकिन आपको एक वसूख के साथ
हुकूमत चेंज हुई है, मेरे कभी भी खान साहब के साथ एक सेकंड के लिए कोई इस पे बात नहीं हुई। मैं हुकूमत चेंज होने के बाद खान साहब से मुलाकात हुई, कोई एक सेकंड के लिए मैंने ये नहीं कहा कि अली अमीन की तबादला सही था या गलत था, ये वो, बिकॉज ये खान साहब का मैंडेट है। वो किस को वज़ीर आला बनाना चाहते हैं, वो किस को वज़ीर बनाना चाहते हैं, वो किस को मशीर बनाना चाहते हैं, वो उसका सवाब दीजिए। हाँ, लोगों के एक दूसरे पे तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर होते हैं। हमारे MPAs इस वक्त 92 हमारे लिए बड़े मोहतरम है, उनमें से कितनों को हम अकोमोडेट कर सकते हैं। देखो 11% से ज़्यादा आइन के मुताबिक आप कैबिनेट नहीं बना सकते। बाकी लोग ऑब्वियसली होंगे, वो चेयरमैन होंगे, कोई दूसरे ओहदों पे होंगे। लोगों को चाहिए कि एक दूसरे को एकोमोडेट करे, एक दूसरे को की वजूद को तकसीम करे और उनकी क्वालिफिकेशन, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये खान साहब की सवाबदीद है। मैंने कभी भी न किसी का पैगाम लेके गया हूँ, न किसी का पैगाम किसी के लिए वहाँ से पैगाम लेके आता हूँ। मेरे पास खान साहब के इंस्ट्रक्शन आते हैं, लेकिन मैंने कभी भी कोई पैगाम भी ला करके शेयर नहीं। सर, आप जैसे पढ़े लिखे उस सूबे में लोग हैं, तो क्या पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी पढ़ा लिखा ऐसा नहीं मिला जो वज़ीर ख़ज़ाना या मशीर ख़ज़ाना के तौर पर आए, बाहर से बंदा मंगवाया? एक उस सूबे की हैसियत के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, उसमें भी होंगे, लेकिन देखो बड़े सारे लोग होते हैं, आप मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ देते हैं। एक्चुअली मुज़म्मिल असलम साहब ये थे कि पहले हुकूमत में भी ये बैकडोर पे सारे रहे और उनका एक एक्सपीरियंस रहा था। उस हुकूमत के साथ इनकी बड़े बैक एंड फोर्थ बात भी चलती रही है, तो इसलिए उनको रखा गया था। इज़ अ गुड गाय। अच्छा दृष्टिकोण साहब, 26 नवंबर बड़ा करीब आ चुका है। पिछले थे बैकडोर चैनल जो थे वो काफ़ी हद तक बाद में पता चला था कि इमरान खान से मुज़ाकरात हो रहे हैं और रिहाई बड़ी करीब है। अब दोबारा 1 साल होने वाला है। क्या 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आ रही है और इमरान खान की रिहाई के लिए कब तक वर्कर्स को खुशखबरी मिल रही है? देखो, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, ईमान में भी आवाज़ उठा रहे हैं, आप सड़कों रोड्स पे भी हम आवाज़ ही उठा रहे हैं और अदालतों में उनका फ़ाइट कर रहे हैं। लेकिन आइंदा इस नवंबर में, आने वाले नवंबर में किसी एहतजाज का अभी तक खान साहब ने कोई ऐलान नहीं किया, इसलिए कोई ऐसा ऑन द कार्ड नहीं है। बैकडोर चैनल किसी से भी नहीं, ना हुकूमत के साथ, ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ। थैंक यू। को भी मैंने कहा था, मैंने मरवत को भी कहा था कि ज़ुबान पे हमेशा लोग लगाम रखते हैं। जब आप एक पार्टी में पोजीशन ले लेते हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी आपकी अपनी नहीं होती, आपकी उस वक्त तक अपनी नहीं है जिस वक्त तक आप उस सीट पे बैठे। ये आप हर लफ्ज़ ऐसा बोले जिससे लोगों में एक तासुर जाए कि आप ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट देते। हमारा PTI का बड़ा नुकसान हुआ है कुछ लोगों के गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट में से, उनमें से मेरे भाई भी शामिल हैं। अभी इन्होंने खड़े शामिल किया ताकि बाकियों पे तनकीद न हो इनके ऊपर। कि बड़े बड़े लोगों को खान साहब साइड लाइन पे कर रहे हैं, वजह क्या है? क्या इख्तलाफ कर दिया है चौधरी साहब ने? नहीं, देखो खान साहब साइड लाइन पे करते नहीं है। पार्टी में कोई चीज़ जो है ना बैद नहीं है, कभी बंदा साइड लाइन पे हो जाता है, कभी फिर मेन स्ट्रीम पे आ जाता है, कोई पता नहीं पार्टियों में होता रहता है। वैसे आपके साथ नहीं हुआ कभी? सर मेरे आप चाह रहे हो जाए